Today we are going to start with a very interesting and important subject, that is Muslim law. Under the Muslim law series, we will study all the important topics जैसे कि schools of Muslim law, its sources, marriage, dower, wills, gifts, etc. along with the important cases in the coming sessions. So stay tuned for a comprehensive study and yet easy understanding of Muslim law. Hello sincere aspirants, I am Shami Anjali and you are watching Legal Bites. You can count on us for all type of your legal learning and law exams, be it mock test series, previous year papers, real-time practice sheets, PDFs, हर तरीके के study materials and much more. So coming back to the topic, today in this video, I will be covering the introduction to Muslim law, जिसमें हम लोग पढ़ेंगे personal law क्या होता है, what is Islam, थोड़ा सा historical background of Islam and who are Muslims. Further, we will also be discussing कि हमें कौन-कौन से topics Muslim law में पढ़ने हैं, कौन-कौन से important legislations हैं और कौन-कौन से landmark judgments हैं that you should know under the Muslim law. Now getting right into the topic, हम सबसे पहले समझते हैं what is a personal law. Personal law is a law which is applicable to a particular community. In India, if we talk about personal law, तो two important personal laws हैं from point of view of all the competitive exams, Hindu law and Muslim law. ऐसे तो और भी कई लॉ हैं जैसे क्रिश्चियन लॉ हो गए, पारसीज के लॉ हो गए, लेकिन हमें यहाँ पे अपने पॉइंट ऑफ व्यू से, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से दो लॉज पे कॉन्सेंट्रेट करना है. नाउ कमिंग बैक टू मुस्लिम पर्सनल लॉ. मुस्लिम पर्सनल लॉ एक रिलीजियस लॉ है. नाउ रिलीजियस लॉ क्या होता है, हम दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं, डिवाइन लॉ एंड मैन मेड लॉ. डिवाइन लॉ क्या है, वेयर गॉड डायरेक्टली गिव्स इट्स गाइडलाइंस, मतलब जो हमें डायरेक्टली भगवान से आ रहा है, जिसे हम भगवान का संदेश कह सकते हैं. जैसे फॉर एग्जाम्पल फॉर हिंदू लॉ, भगवत गीता इज अ डिवाइन लॉ. क्यों? क्योंकि उसमें लॉर्ड कृष्ण ने इम्पार्ट किया था लाइफ लेसन्स टू अर्जुन. सिमिलरली अगर हम मुस्लिम लॉ की बात करें तो जो होली कुरान है वो उनका डिवाइन लॉ है, क्योंकि इट इज बिलीव दैट देयर गॉड अल्लाह थ्रू गेब्रियल, जो एंजल थे गॉड के, हैज गिवन सर्टेन गाइडलाइंस टू प्रॉफिट which should be followed by every Muslim. Therefore, Muslim considers the prophet as messenger of God. तो ये था डिवाइन लॉ. अब मैन मेड लॉ क्या होता है, जो लॉ पार्लियामेंट ने बनाया है, जैसे लेजिस्लेशंस हो गए, एक्ट्स हो गए. अगर हम मुस्लिम लॉ की बात करें तो मुस्लिम लॉ में डिसोल्यूशन ऑफ मुस्लिम मैरिज एक्ट 1939 हो गया, प्रोटेक्शन ऑफ मुस्लिम वुमेन फ्रॉम डिवोर्स एक्ट 2009 हो गया, 19 तो ये सब मैन मेड लॉ है. अब थोड़ा सा हम देखेंगे ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ इस्लाम. तो जो पीरियड था इस्लाम के पहले का अरेबिया में, उसको बोलते थे पीरियड ऑफ इग्नोरेंस, जिसको आयम ई जहिलिया भी बोलते थे. आयम ई जहिलिया क्यों? बिकॉज ऑफ द प्रिवेलिंग कंडीशंस एट दैट टाइम, लाइक गैम्बलिंग, सेपरेशन ऑफ वुमेन, फीमेल इन्फेंटिसाइड एक्सेट्रा. मतलब बहुत ही बारबेरिक कंडीशंस था, कुछ सिविलाइज नहीं था, कोई लॉ नहीं था, कोई सिस्टम नहीं था. उसी टाइम पीरियड में प्रॉफिट मोहम्मद का बर्थ हुआ. He was born during 570 AD. He started preaching Islam to the people of Saudi Arabia, and that is how Islam came into existence. It is believed that जो Gabriel हैं, angel of God, he enumerated the guidelines to prophet which a person should follow in his life, and Holy Quran is a recitation of those guidelines. अब समझते हैं who is a Muslim for the purpose of application of Muslim law. Now, who is a Muslim falls in two categories. पहला, Muslim by birth or origin, where both the parents are Muslims. Even if one of the parent is a Muslim, child will be Muslim. Second है by religion or conversion. A convert is a person who renounces his faith and adopts another religion. लेकिन यहाँ एक important बात है कि जो conversion है, it should be bona fide, कोई अल्टीरियर मोटिव से नहीं होना चाहिए, कोई अल्टीरियर इंटेंशन से नहीं होना चाहिए. मतलब कन्वर्जन का जो इंटेंशन है वो बिल्कुल ही प्योर होना चाहिए, सही होना चाहिए, बोनाफाइड होना चाहिए.
यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट केस है जो हमें हमेशा ध्यान में रखना है, दैट इज सरला मुदगल वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। इस केस में क्या हुआ था कि हस्बैंड वाज ऑलरेडी मैरिड अंडर हिंदू लॉ। अब हिंदू लॉ तो सेकंड मैरिज परमिट करता नहीं है, तो इन ऑर्डर टू मैरी अगेन ही एम्ब्रेस्ड इस्लाम एंड सोलेमनाइज्ड अ सेकंड मैरिज अंडर मुस्लिम लॉ। कोर्ट ने जो सेकंड मैरिज था हिंदू हस्बैंड का आफ्टर कन्वर्जन टू इस्लाम, इसको इनवैलिड हेल्ड किया, मैरिज को डिसॉल्व किया। क्यों? क्योंकि उसने अपना फर्स्ट मैरिज डिसॉल्व नहीं किया था अंडर हिंदू लॉ। ऐसे ही बहुत सारे केसेस आने लगे जहां पे कन्वर्जन को इस टाइप के सेल्फिश मोटिव के लिए यूज किया जाने लग गया। बिकॉज आप सबको पता होगा मुस्लिम लॉ में 4 मैरिजेस अलाउड है बट हिंदू लॉ में नहीं है। तो फाइनली लिली थॉमस वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया में सुप्रीम कोर्ट ने हेल्ड किया दैट वन पर्सनल लॉ कैन नॉट बी यूज्ड टू डिफेक्ट द स्पिरिट और पर्पस ऑफ अनदर पर्सनल लॉ। सुप्रीम कोर्ट ने इस केस में भी हस्बैंड को गिल्टी किया फॉर बाइगेमी अंडर सेक्शन 494 और आईपीसी। तो जो ये दोनों केस हैं रिलेटेड टू कन्वर्जन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आप प्लीज इसे नोट कर लो आप, या फिर अपने मतलब मेमोराइज कर लो। मतलब प्लीज ये 2 केस आपको बस पता होने चाहिए व्हेन इट कम्स टू कन्वर्जन। सो नाउ आई एम गिविंग अ ग्लिम्स कि क्या क्या हम मुस्लिम लॉ में कवर करेंगे। तो जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है वो आप अपने स्क्रीन पे भी देख सकते हो, दैट विल बी कवर्ड इन द अपकमिंग वीडियोज आर सोर्सेज ऑफ मुस्लिम लॉ, स्कूल्स, मुस्लिम मैरिज, डावर जिसको मेहर बोलते हैं, डाइवोर्स, डिसोल्यूशन ऑफ मैरिज, मेंटेनेंस, गिफ्ट जिसको मुस्लिम टर्मिनोलॉजी के अनुसार हिबा बोलते हैं, विल, वक्फ, पैटर्निटी, लेजिटिमेसी, एक्नॉलेजमेंट एंड एडॉप्शन, सक्सेशन एंड एडमिनिस्ट्रेशन एंड इनहेरिटेंस। जो लैंडमार्क जजमेंट्स हैं जो हम पढ़ेंगे, जो इंपॉर्टेंट है अंडर मुस्लिम लॉ आर, आप अपने स्क्रीन पे भी देख सकते हो, मोहम्मद अहमद खान वर्सेस शाह बानो बेगम, डैनियल लतीफी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, शमीम आरा वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी, हसीना बीवी वर्सेस जुबैदा बीवी, शायरा बानो वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया जो हमारा करंट ट्रिपल तलाक केस है। अब व्हेन वी टॉक अबाउट लेजिस्लेशंस, हमें पता होना चाहिए कि मेजॉरिटी ऑफ मुस्लिम लॉ जो है अनकोडिफाइड है, बट फिर भी देयर आर सेवरल इंपॉर्टेंट लेजिस्लेशंस जो हम पढ़ेंगे अंडर मुस्लिम लॉ। दे आर मुस्लिम पर्सनल लॉ शरीयत एप्लीकेशन एक्ट 1937, Dissolution of Muslim Marriage Act 1939, Muslim Women Protection of Rights on Divorce Act 1986, the Waqf Act 1995, Muslim Women Protection of Rights on Marriage Act 2019. So this was all in the introduction. In the next class we'll be dealing with sources of Muslim law. I hope ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो, हेल्पफुल लगा हो, और अगर आपको ये वीडियो यूजफुल लगा हो तो प्लीज कमेंट कीजिए और अपना फीडबैक शेयर कीजिए, और ऐसे ही वीडियोस के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।